story that somehow nobody seems to be talking about. It's almost as if everyone is scared of talking about how the places where the protests and the road blockades by the anti-farm law protesters have gone on for close to 6 months now could fast be turning into hotbeds for infection. Within the last 20 days, 3 people have died. And mind you, these are reported deaths. There could be many more which are not even reported. 3 people who were sitting at Delhi's border with Haryana and Punjab have died of COVID. First, at the beginning of this month, it was a 25-year-old girl who had come from West Bengal and was sitting at Tikri border. Then on the 17th, another gentleman called Major Khan passed away of COVID. And then yesterday, it was a 50-year-old anti-farm law protester from Patiala who breathed his last. He also was COVID positive. But despite all of that, the people who lead these protests are in complete denial. Any request to them to end this blockade, to at least get those protesters tested, falls on deaf ears. So much so that now, emboldened by this turning of a blind eye to all their activities so far, they have become even more violent. Now, in 3 villages in Haryana, these anti-farm law protesters have not only shut down the COVID care centers, but they have also barred the entry of doctors. Can you imagine? In the middle of a pandemic, they have shut down the COVID care centers. Their logic is, till the time the farm laws are taken back, because the police lathi charged protesters who were trying to march into a COVID care center in Hisar on Sunday, they are now not going to allow the government to function. प्रशासन की हमें मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिसार में जो लाठीचार्ज किया गया है ये बहुत ही बर्बरतापूर्ण, औरतों को पीटा गया, बूढ़े आदमियों को पीटा गया। ये मतलब इस चीज़ से पूरा हरियाणा खपा है और एक ही निर्णय लिया गया, हमें प्रशासन की कोई भी ज़रूरत नहीं। रात को हार्ट अटैक से मौत हुई है, कोरोना का कोई केस नहीं हमारे गाँव में। जो इधर कोविड सेंटर बनाया था स्कूल के अंदर, आज वो भी उठवा दिया। सर, हमने बता दिया हम असहयोग आंदोलन चला रहे हैं और एक बेबस होके चला रहे हैं, क्योंकि हमने मरना तो है ही, तो हम क्यों ना हम खुद ही की मौत मर लें, किसी के बैग में पैक होके तो ना जाएं, ताकि घर वाले अंतिम संस्कार तो कर सकें। सैंपलिंग वगैरह नहीं करवाने देंगे आप? हम गांव का पूरा मेरा फैसला नहीं है, पूरे गांव का 2 दिन पहले भी पंचायत हुई है और उन्होंने ये फैसला लिया कि हम कोई भी प्रशासनिक आदमी या कर्मचारी को गांव में नहीं घुसने देंगे। And what is most distressing is that these are not isolated incidents. Week on week, the cockiness of these protesters only increases. First, it was the violence that you saw on the 26th of January. After that, an MLA of the BJP was beaten. He was almost lynched, stripped naked by these so-called anti-farm law protesters. Then you've got these deaths that are happening at protest sites. When the government asked them to carry out testing, they have ignored that as well. And finally, things are so bad. So far has this denial and deflection gone on that some farmer leaders are now speaking up and requesting these protesters to back off, if only for the time being. अपने जो कार्यक्रम को है, अपने सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सभी बॉर्डरों पे जितने भी हमारे किसान भाई हैं, मैं कहूँगा कि फिलहाल हम लोग इस कार्यक्रम को स्थगित कर दें और इस कार्यक्रम को जब देश की दशा दिशा सुधर जाएगी उसके बाद हम लोग इन तीनों कानून बिलों के लिए लड़ेंगे और एमएसपी पे लड़ेंगे। हम लोग, किसान बचेगा तभी हम लोग अन्नदाता कहलाएंगे। You're watching the News Hour at 10, debate number 2 on Times Now, Super Prime Time. All right, Aprajita Sarangi, MP and National Spokesperson of the BJP, continues with us, along with author Ratan Shada. We are joined by Chaudhry Avneet Panwar, National President of the Kisan Sena, and Pawan Duggal, farmer leader. Pawan Duggal, I want to ask you first, along with Dushyant Nagar, political analyst. Pawan Duggal, I want to start by asking you first. 3 deaths in 20 days. You don't think that these protest sites are now a hotbed of infection? देखिए, ये पूरे देश के अंदर अभी 26 तारीख को 6 महीने का टाइम हो जाएगा आंदोलन चलते हुए। ऐसी स्थिति के अंदर देश में कोरोना चल रहा है, लेकिन हालात हमारी ये हो चुकी है कि कोरोना के साथ साथ हमें देश के
इन तीनों कृषि बिलों के खिलाफ लड़ते हुए अभी 6 महीने का टाइम हमें हो जाएगा। इसलिए हमारे लिए सबसे ज्यादा कोरोना से हम लोग अब 3-4 बॉर्डर जोन लगे हुए हैं। अभी आपने बताया जिन 3 केसों का जिक्र हुआ है, 3 केस जो आए हैं, इतनी बड़ी जनसंख्या के अंदर आ सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जहां जिस प्रकार देश की हालात बनी हुई है, जिस प्रकार परिस्थितियां बनी हुई है, उनकी बनस्पत आज बॉर्डर के ऊपर ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिस स्थिति के अंदर हम ये कह सकें कि बहुत बुरी हालात है। तो तीन मौतें होती रहती हैं। नहीं अच्छा, मौत तो ठीक है, मतलब देश में इतने लोग मर रहे हैं, 3 लोग इधर भी मर गए, तो कौन सी बड़ी बात है? नहीं, मौत तो एक भी बहुत है, लेकिन ये बात तो सरकार से पूछिए ना भाई। 6 महीने हो गए तो 300-400 के करीब तो किसान भी मरे हैं, 400 के करीब किसान शहीद हुए हैं। तो क्या किसान की देश में जो हो रहा है सर दुग्गल साहब, जो देश में हो रहा है और यहाँ जो हो रहा है उसमें फर्क 2 है। एक, देश भर में लोग घरों में बैठे हुए हैं मास्क पहन के, और दूसरा, देश भर में रूल्स ये हैं कि आज के दिन एक अर्थी के लिए भी 50 से ज्यादा लोग एक जगह पे जमा नहीं हो सकते, एज अपोज टू वहां पे 500 लोग जो अभी भी बिना मास्क के सड़कों पर टेंटों में बैठे हुए हैं। तो फर्क ये फर्क, पर आपको लगता है ये अभी भी सही? इसकी जिम्मेवारी भारत सरकार की है। जब पिछली फरवरी-मार्च के अंदर कोरोना की लहर पहले आई थी, तो क्या 11 महीनों के अंदर सरकार कोई तैयारी नहीं कर पाई? सरकार हम पे ही थोप रही है, सरकार जनता पे ही थोप रही है। ऑक्सीजन की कमी नहीं है तो किसान क्या करे? सरकार ने 15 दिन नहीं, एक सेकंड, सरकार ने 15 दिन पहले वहां टेस्टिंग कैंप लगाया। टेस्टिंग क्यों नहीं की? आप लोग टेस्ट क्यों नहीं करा रहे? देखिए हालात आज ऐसी है कि जहां तक सरकार टेस्टिंग की बात कर रही है, सरकार के क्यों नहीं करा रहे? दुग्गल साहब, आप टेस्टिंग क्यों नहीं करा रहे? टेस्टिंग क्यों नहीं करा रहे? किससे डरते हैं आप? ये देखिए अलग अलग स्थिति है। जहां तक बॉर्डर का सवाल है, जिन बॉर्डर पे हम बैठे हैं, ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि हम लोग इनकार करें। कोई 1-2 बॉर्डर की स्थिति हो सकती होगी कि उन्होंने इनकार किया। कैसी स्थिति नहीं है? आप डॉक्टर हैं, आप लेबोरेटरी टेक्नीशियन हैं, आपको कैसे पता कि वहां कोविड नहीं फैला? आपकी आंखों में आरटीपीसीआर टेस्ट है क्या? आपको कैसे पता वहां कोविड नहीं फैला? बिल्कुल कोविड नहीं फैला। हम लोग बैठे हैं ना, हम लोग लाखों की तादाद के अंदर बैठे हैं। गांव की हालात देखिए आप कैसी देश की बना। आपको कैसे पता आपको कोविड नहीं है? हम समझते हैं इसलिए हम कह रहे हैं। जो ये 50 साल के बलबीर सिंह थे, आपको पता नहीं, आपको कुछ पता नहीं है। 12 घंटे के अंदर उनका 12 घंटे पहले टेस्ट हुआ, 12 घंटे के अंदर उनकी मौत हो गई। तो आपको कैसे पता नहीं चला कि उनको कोविड था? आपको अगर इतना पता है, अरे जो आप सर्वज्ञानी हैं, आपको कैसे नहीं पता चला कि बलबीर सिंह को कोविड था? तो इन 6 महीनों के अंदर 400 मौतें हो चुकी है। क्या वो मौतें किसान के लड़ते हुए नहीं हो पाई? छोड़िए ना, आप मेरे को पिछले 24 घंटे का बताइए। बलबीर सिंह को कोविड था, आपको पता था कि नहीं पता था? मौत तो मौत है, बट बलबीर सिंह को कोविड था कि नहीं, ये आपको पता था कि नहीं पता था? हम ये कह रहे हैं मौत है, और मौत का रूप कोई हो सकता है। इस बात की जिम्मेवारी भारत सरकार की होनी चाहिए। सरकार ने तो कुछ किया नहीं है। सरकार की व्यवस्था पूरी तरह ठप हो चुकी है। सरकार में बैठा क्या? की कोई चीज नहीं है। आप मेरे को ये बताइए कि सरकार ने आपको बोला है कि कोविड टेस्ट कराओ, आपने कोविड टेस्ट क्यों नहीं कराया? आपने कोविड टेस्ट क्यों नहीं कराया? हम ये आपके माध्यम आपसे पूछना चाहते हैं कि सरकार कर क्या रही थी? सरकार जब ऊपर मौत आ गई तब सरकार को याद आई। मुझे नहीं बनना आपका माध्यम। क्या आप सिर्फ इस सवाल का जवाब दीजिए, आपने कोविड टेस्ट क्यों नहीं कराया? और अगर आपको पता था कि यह आदमी को कोविड है, तो आपने उसको अस्पताल क्यों नहीं पहुंचाया समय रहते? देखिए, ये सरकार की जिम्मेवारी थी, सरकार को काम करना चाहिए। सरकार खुद विफल है। और सरकार की जिम्मेवारी क्या है? सरकार की जिम्मेदारी क्या है कि लोगों को पकड़ के उनके मुंह से टेस्ट ले ले? सरकार ने टेस्टिंग कैंप लगवाया है। आप ये बताइए, हॉस्पिटल के अंदर जब ऑक्सीजन नहीं है, टेस्टिंग कैंप लगवाया, व्यवस्थाएं नहीं है, टेस्टिंग कैंप लगवाया है। आपने टेस्टिंग कैंप में टेस्टिंग क्यों नहीं होने दी? आपने टेस्टिंग कैंप में टेस्टिंग क्यों नहीं होने दी? मैं ये कह रहा हूँ कि केवल कोविड चेक करके ही समस्या का समाधान होगा, या जो मर रहे हैं उनको बचाने का भी कोई प्रोग्राम है? लोग कितने मर रहे हैं, हालात क्या है देश की? गंगा नदी के अंदर लाशें बह रही है, वो सब कुछ नहीं दिख रहा सरकार को। इतने बड़े 6 महीनों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। आप इधर उधर की बात गर्मी के अंदर पीड़ित जो भी आपको इस वक्त सुन रहा है, उसको ये बात समझ में आ रही है कि आपके पास एक भी जवाब नहीं है। वहां पर लोग संक्रमित हैं,
कोरोना फैल रहा है, वो कोरोना अपने गांव में लेके जा रहे हैं। यहां तक कि चौधरी अवनीत पवार अब तो खुद किसान नेता कह रहे हैं कि बस बंद करो, कुछ महीने के लिए हट जाओ, अगर आपको कोई गुड्डा-गुड्डी का खेल है, कोई गुड्डा-गुड्डी का खेल थोड़ी है। मैं आज टीवी पे देख रही थी, मैं आज देख रही थी सिंघू बॉर्डर पे इंटरव्यू दे रहे हैं लोग बैठ करके, एक आदमी मास्क नहीं पहना हुआ है। टेस्टिंग तो आप दूर की छोड़िए, एक आदमी मास्क नहीं पहना हुआ है, सब चटाइयों पे वहां लेटे हुए हैं टेंट। आप ये हालात में आप मास्क पे आए हो, वहां पर जो लोग मर रहे हैं, कैसे ऑक्सीजन चलेगा? हॉस्पिटल में नहीं है, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं अरे है। मर इसलिए नहीं क्योंकि आप उनको टेस्टिंग नहीं कराने दे रहे भाई। लोगों की लाशें, इसलिए मर मैं रहे ये कह रहा हूं, हैं, जो लोग तो तब मैं ये बचेंगे कह ना रहा हूं, जब उनको अस्पताल ले जाएंगे। हॉस्पिटल, आप तो जो अस्पताल हॉस्पिटल नहीं के ले अंदर जाने दे उनको तो रहे। बचाए ना, जो हॉस्पिटल में उनको तो बचाए सरकार, हॉस्पिटल की आप व्यवस्था अस्पतालों की चिंता छोड़ दीजिए, वो सवाल हम पूछेंगे। आप अभी ये बताइए कि जिन लोगों को आपने टेंटों के अंदर रखा है, उनकी भी चिंता उनको है, अस्पताल क्यों नहीं जाने दे रहे आप? उनकी भी आप चिंता है, जो उनकी लोग मर रहे चिंता हैं, उनकी कीजिए भी जिनकी चिंता है। जान आप लेकिन जोखिम में डाले हुए हैं। इसका बिल्कुल मेरी हमने बात अपनी सुनिए। जान आप जोखिम में क्योंकि डाली आप है। किसान की तरह बात नहीं कर रहे, आप नेतागिरी कर रहे हैं। आपको गंगा की चिंता पड़ी है, आपको सिंघू की चिंता नहीं पड़ी, आप नेतागिरी कर रहे हैं, प्लेन एंड सिंपल। आप कोई की बात नहीं कर रहे हैं, आप नेतागिरी कर रहे हैं। ये सरकार की Let's be भाषा very है, clear about it. ये सरकार की भाषा है। हम लोग ये 6 सरकार महीने की से भाषा बैठे हैं। नहीं है, हम ये क्या- आपकी हम क्या भाषा है करें? जो कि मैडम नेतागिरी मेरी की बात भाषा है। सुनिए। अगर हम आपको क्या करें? अगर हम सुनिए, क्या करें? अगर देश एक का सेकंड, अन्नदाता- अगर आपको हमने एक 400 के अगर गरीब एक किसान की सेकंड दुग्गल शहादत साहब, दी एक है। सेकंड, अब आपने बहुत बोल लिया, एक सेकंड, अब 2 मिनट शांति से बैठिए। वो शहादत नहीं होती अगर कोई बेचारा गरीब बिना ऑक्सीजन के इसलिए मर जाए क्योंकि आपने उसका टेस्ट भी होने दिया, उसको शहादत नहीं बोलते हैं, उसको एक बहुत ही बुरी, बहुत ही दुखद मौत बोलते हैं, उसको शहादत मत बोलिए, पहली बात। सेकंड थिंग, आप मेरे को बताइए चौधरी अवनीत पवार, हमारे पास ऑन रिकॉर्ड 3 गांव हिसार में जहां पर डॉक्टरों का आना बंद कर दिया है और कोविड सेंटर बंद कर दिए गए हैं। आप मेरे को बताइए किस हैसियत से ये किसान नेताओं ने ये किया है? कोरोना के वक्त जो कोविड सेंटर खुला हुआ है उसको बंद कर दिया गया, डॉक्टरों को बाहर निकाल दिया गया, किस हैसियत से ये कर रहे हैं? मैडम सबसे पहली बात तो ये है कि आज हमारे देश के पास कोविड का टीका नहीं है। जिस टीके की पूर्ति तो सरकार करेगी, ना कि किसान नेता और किसान करेंगे। प्लीज आप यहाँ राजनीतिक भाषण मत दीजिए, आप राजनीतिक भाषण आप मत बात दीजिए, सुना, यहाँ भाषण नहीं सुना। आप तो मीडिया तो हमारा फोर्थ स्तंभ है जो कि हमारी बातों को आगे लेके जाती है मैडम। महमूदाबाद और हिसार में जहां पर कोविड केयर सेंटर बंद किए गए हैं, जो गांव वाले हैं उनको आज कोविड की मेडिकल असिस्टेंस नहीं मिल रही है, किस हैसियत से इन नेताओं ने वो बंद कराया है? जो सरकार से आप सवाल पूछे कि सरकार क्या कर रही है, सरकार ने वहां पर कोविड केयर सेंटर बनाया, आपने उसे बंद करवा दिया, क्यों? कोविड केयर सेंटर के साथ साथ कोविड के आपका टीका भी तो चाहिए। आप टीका नहीं देंगे, कोविड सेंटर खोलेंगे। आप कह रही थी कि बॉर्डर पे से हमने क्यों बंद करवाया? आपकी बात को टीका कहां मिलेगा? आसमान से आएगा टीका? उस कोविड केयर सेंटर में जो डॉक्टर टीका देता, उस डॉक्टर को आपने बाहर निकलवा दिया और कोविड केयर सेंटर बंद करवा दिया। बॉर्डरों पे आप लोग को मरवा रहे हैं चौधरी साहब। सच बात यह है कि आप लोगों को मरवाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी पत्थरबाजी, धरना ये सब कम पड़ गया तो आप कोविड केयर सेंटर्स बंद करवा के लोगों को मरवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये काम था, आप लोगों का काम था कि सही बात को आगे तक पहुंचाना। आपका काम था कि जब आपको पता था किसान 6 महीने सर, हमारे काम पर आप भाषण मत दीजिए। मेरा काम मुझे बहुत अच्छे से आता है। मैं आपसे सिंपल सवाल ये पूछ रही हूँ, आप जो सही बात गलत बात का भाषण दे रहे हैं, आपने किस हैसियत से कोविड केयर सेंटर बंद करवाया? चौधरी साहब, आपने किस हैसियत से कोविड केयर सेंटर बंद करवाया? और उस गांव के लोगों को अब टीका और ऑक्सीजन किधर से मिलेगा? क्या सरकार के पास टीका है? आप टेस्ट करेंगे, आप कह रहे हैं कि टेस्ट आपको तब पता चलेगा ना जब आप कोविड केयर सेंटर में पहुंचेंगे। जब कोविड केयर सेंटर पहुंचेंगे तब पता चलेगा आपको। जब सेंटर ही नहीं होगा तो टीका और फीका कुछ समझ में नहीं आएगा। आप एक सेकंड रुकिए। बट रतन शारदा, आई वांट टू आस्क यू अ मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हिच आई वांट Aparajita Sarangi also to listen to. The simple thing is that over the last 6 months we have seen just a second, we have seen the brazenness of these so-called farmer leaders only increase. They have
stopped and heckled ministers. They have done stone pelting. They have stripped a man naked in Punjab who was a sitting MLA of the BJP, and now they are shutting down COVID care centers. As a citizen, the question should be to the government of Haryana and the centre. Who is going to make these things stop? Do you know, Ratan Sharda, that today the Haryana government, after 4 days, filed FIRs for the Hisar stone pelting? Do you know who the FIRs are against? Unnamed people. Why? Is the government scared of taking action? They can't even name these people in FIRs. Ratan Sharda. I would not get into what government has to do or why their names not appear. Aparajat will respond to that. My simple, what I have heard from all this, मेरा सीधा साधा, मैं जानबूझ के हिंदी में बोल रहा हूँ, इनका सीधा साधा मतलब है कि गरीब किसान को मोहरा बनाना, उसको मोहरा बना के किसी तरह ऐसा वातावरण खड़ा करना कि असंतोष फैले, हिंसा फैले। ये 26 जनवरी को ट्राई किया गया, किसान मर रहे हैं, आप कह रहे हैं ऑक्सीजन है। भैया दिल्ली में तो ऑक्सीजन की कमी कब से पूरी हो गई? आप कह रहे हैं कोविड का इंजेक्शन, 6 महीने से किसान बैठे हैं, 45 से 60 साल के लोगों के लिए जो सबसे अधिक थे वहां पर, उनके लिए टीका तो खाली पड़ा था, तंबू खाली पड़े थे, लोग टीका लगवा नहीं रहे थे। आप कह रहे टीका कहाँ पर है? आप कहते हैं कोविड का इलाज खराब हुआ था। 95% लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, वो वैसे ठीक हो जाते हैं, वो भी आपको पता नहीं है। आपको किसान को मोहरा बना के एक असंतुष्ट वातावरण खड़ा करना है। मुझे अब जरा चुप रहिए, आप जरा शांति से बात करिए। मैं भी पंजाब से हूँ, पंजाबी में बताऊँ आपको, जो कानून है किसान का, एक व्यक्ति बता दे उसके अंदर किसान की जमीन कैसे जा रही है, कोई नहीं बताएगा। मैं कई बहसों में आ चुका हूँ, फार्म बिल के ऊपर, हर चैनल के ऊपर, आपकी चैनल पे इसके ऊपर चर्चा हो सकती है या चर्चा हो चुकी है। कोई नहीं बता पाया कौन से क्लॉज के अंदर किसानों की जमीन जा रही है, क्योंकि किसी क्लॉज में नहीं जा रही। आप कह रहे हैं डर है, अरे भैया डर है तो बातचीत के लिए बैठो, बातचीत के लिए बैठे। अरे शांत रहिए आप बहुत झूठ प्रचार कर लिया, बहुत झूठ प्रचार कर लिया आपने। आप बिल को डिस्कस करना नहीं चाहते। At this point, unfortunately, I'm out of time, but this is something that we'll keep following up. I apologize to you, Dushyant Nagar, because I also wanted to ask you about how a minister in the Punjab cabinet, Trip Rajinder Singh Bajwa, today himself has admitted that the farmers who are going back from the borders are taking the virus into the villages of Punjab. Do you know that today the positivity of Punjab stands at 10 times what it was in the month of January? Surely we have to examine why that happened, and we will do that and keep our focus on this story as well. But this cannot be allowed to go on, and those questions must be asked of the government as well. Why are they allowing it to go on? On that note, thanks very much for joining us. See you tomorrow.